Hello everyone, I am Sadhna Kashyap, lecturer Sri Rawatpura College of Nursing, Naya Raipur. Today we are going to discuss a very important topic, that is hyperthyroidism. So before starting the presentation, I would like to brief you about the topic. Okay, as the name says itself, hyperthyroidism. Hyper means increase production. Thyroidism means thyroid hormone is nothing but the production of too much thyroxine hormone in the body. Okay, then next is thyroid gland. So what is thyroid gland? The thyroid gland is one of the largest endocrine gland in the body and consists of two connected lobes. It is found in the anterior neck below the laryngeal prominence, that is Adam's apple. We can see in these pictures, that is thyroid gland. Okay, then how the thyroid gland work in the body. First of all, we are see in this ray diagram hypothalamus. Hypothalamus releasing the thyroid releasing hormone in this anterior pituitary gland. Then anterior pituitary gland is release the thyroid stimulating hormone in the thyroid gland. Then thyroid gland is releasing the thyroid hormone in the target cells. That is the pathway for the thyroid gland to how the work. Then next is introduction. Hyperthyroidism is a hyperactivity of the thyroid gland with sustained increase in synthesis and release of thyroid hormone. That means we can see here pictures, T3 and T4 hormones are released by the thyroid gland. Too much hormone produced by the thyroid gland, that is hyperthyroidism. Then next is hyperthyroidism. ठीक है, that is hyperthyroidism is a set of disorder that involve excessive synthesis and secretion of thyroid hormone, that is T3 and T4 by the thyroid gland, which lead to the hypermetabolic condition of thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis is a excessive production of thyroid gland. Then thyrotoxicosis. The term thyrotoxicosis referred to the physiological effect or clinical syndrome of hypermetabolism that result from excessive circulation level of T3, T4 or both. That means here excessive production of T3 and T4 in the body. As we can see in these pictures, there is a patient. Okay, there is some difficulties in eyes, bulging eyes present in the patient of thyrotoxicosis. Okay, then next is causes of hyperthyroidism. What is the causes of hyperthyroidism? First of all, we are seeing in pictures thyroid nodules and tumors cause to hyperthyroidism. Then thyroiditis means inflammation of the thyroid gland. Then excessive iodine intake, that means we are excessive consume the iodine rich diet. Okay, then grave disease is one of the most common causes for the hyperthyroidism. Then medication. Okay, medication means thyroid releasing hormones excessive use. Okay, when patient is excessive use of medication like thyroid releasing hormone, that lead to the hyperthyroidism. Okay, then other risk factor is gender, history, age, smoking, trauma to the thyroid and major stress. These are the hyperthyroidism causative factors. Then next is grave disease. What is grave disease? Most common causes is 50 to 60% in hyperthyroidism. Okay, an autoimmune disorder in which antibodies produced by immune system stimulated thyroid to produce too much thyroid hormone. That means यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो ग्रेव डिसीज है उसमें क्या हो रहा है, टू मच थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या है, पेशेंट में क्या होगा, एबनॉर्मल साइनम सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि इसमें है क्या है पिक्चर्स में. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, बल्जिंग आइज. ओके, पेशेंट का क्या होगा, आई जो है वो बल्जिंग हो जाएगा. ठीक है, और जो उसका क्या है थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा. दैट इज ग्रेव डिसीज. देन thyroiditis means 15 to 20% cases are thyroiditis. ठीक,
a destruction of release of performed thyroid hormone. That means thyroid inflammation lead to thyroiditis. Then toxic multinodular goiter, also called plumbar disease. Okay, also cause plumbar disease. 15 to 20% of cases occur more commonly in elderly, especially with long standing goiter. That means ये कौन से पेशेंट में हो सकता है आपका, जिनको क्या है, जो लोग एल्डरली हैं, जो लोग ओल्ड स्टेज में हैं, देन जिनको क्या है लॉन्ग टाइम तक क्या है गॉइटर डिसीज पहले हो चुका है, उनमें क्या हो सकता है ये टॉक्सिक्स मल्टीनोड्यूलर गॉइटर्स होने के चांस होते हैं. ओके. देन टॉक्सिक्स एडिनोमा caused by the single hyperfunctioning follicular thyroid edema account 3 to 5% of cases. Benign mononuclear tumor that usually is larger than 2.5 centimeter. That means ये क्या होता है आपका टॉक्सिक एडिनोमा इज अ ट्यूमर फॉर्म इन द थायराइड ग्लैंड. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका हाइपर फंक्शन हो रहा है. हाइपर फंक्शन के मतलब एक्सेसिव फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर एडिनोमा होगा, ट्यूमर फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है पेशेंट को क्या होगा टॉक्सिक एडिनोमा कॉज होगा. देन कम टू द pathophysiology of the hyperthyroidism. Hyperthyroidism characterized by hyperthyroidism means characterized by low normal regulatory control of thyroid hormone secretion. मीन्स इसमें क्या बोला है कि जो हाइपरथायराइडिज्म रहता है वो क्या हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है नॉर्मल नहीं है. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है जो हार्मोन का सिक्रीशन का जो कंट्रोल रहता है वो क्या है प्रॉपर नहीं हो रहा है. लॉस ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब जो रेगुलेटरी कंट्रोल हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का. वो क्या लीड करेगा, द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन द बॉडी इज स्टिमुलेटरी हाइपरमेटाबॉलिज्म रिजल्ट. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर आपका जो रेगुलर फंक्शन है वो क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर जो हाइपर मेटाबॉलिक रिजल्ट आएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ है बॉडी में वो क्या होंगी इंक्रीज होंगी. देन वो क्या लीड करेगा इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटीज़, मतलब वो क्या लीड करेगा हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा. देन उसके बाद क्या होगा अल्ट्रेशन सिक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड गोनाडल हार्मोन. वो क्या करेगा आपका जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर क्या हो जाएगा अल्टर्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड का क्या होगा अल्टर्ड सिक्रीशन होगा. वो क्या लीड करेगा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट द कार्डियक सिस्टम एंड इंक्रीज द एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होगा एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन का क्या होगा स्टिमुलेशन होगा और प्रोडक्शन होगा. वो क्या लीड करेगा आपका दैट लीड टू द ट्रैकीकार्डिया एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पेरिफेरल ब्लड फ्लो. वो क्या लीड करेगा हमारे बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, तो वो क्या लीड करेगा निगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस लिपिड डिप्लेट एंड द रिजल्टेड स्टेट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. उसकी वजह से निगेटिव नाइट्रोजिनस बैलेंस हो जाएंगे और वो क्या लीड करेगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा और उसकी वजह से क्या होगा थायराइडिज्म होगा पेशेंट को. ठीक है, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ हाइपरथायराइडिज्म. द नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. हाइपरथायराइडिज्म इज अ वेरियस क्लिनिकल सिम्टम्स लाइक इंटॉलरेंस टू हीट. जो पेशेंट रहेगा उसको क्या रहेगा, अब उसको बहुत ज़्यादा क्या है हीट प्रोड्यूस होगा बॉडी में, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, गर्मी फील होगा. ठीक है, फाइन स्ट्रेट हेयर, जो पेशेंट रहेगा उसका जो हेयर है वो क्या होगा आपका पतला रहेगा और क्या रहेगा स्ट्रेट रहेगा. ठीक, बल्जिंग आइज. ठीक है, पेशेंट का आई क्या हो जाएगा बल्ज आउट हो जाएगा. फेशियल फ्लशिंग, रेडनेस ऑफ द फेस. देन एनलार्ज थायराइड, उसका जो थायराइड ग्लैंड है ठीक है वो क्या होगा एनलार्ज हो जाएगा. देन ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को. देन इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा पेशेंट में. देन वेट लॉस होगा. देन मसल्स वेस्टिंग एंड लोकलाइज एडिमा. दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. एंड क्या होगा पेशेंट में फिंगर क्लबिंग्स. पेशेंट का जो फिंगर्स है वो क्या हो जाएगा क्लबिंग हो जाएगा. ठीक है, मुड़ जाएगा. देन क्या होगा ट्रीमर्स, पेशेंट में ट्रीमर्स आएंगे. देन डायरिया डिसीज होगा पेशेंट को. देन मेंस्ट्रुएशन चेंजेस होगा फीमेल पेशेंट में. दैट इज द ऑल ऑफ दिस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. देन डायग्नोस्टिक टेस्ट.
we can see first of all we are collect the history and physical examination, then ophthalmic examination done, then ECG, arterial tachycardia, then laboratory test, then thyroid function test T3 T4 and thyroid stimulating thyroid releasing hormone test. We can use this diagnostic test for the diagnosis of hyperthyroidism. The next is radioactive iodine uptake test. A radioactive iodine uptake test use a radioactive tracer and a special probe to measure how much tracer and thyroid gland absorb from the blood. That means यहाँ पर क्या बोला है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेडियो आयोडीन जो ट्रेसर है उसका हम क्या करें, यूज़ करके एक स्पेशल प्रोब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना ज़्यादा हमारे ब्लड में है थायराइड हार्मोन, उसका हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट. सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर, नॉर्मल में क्या होगा पेशेंट का, पिक्चर्स में ये होगा, ठीक है. यहाँ पर क्या है आपका जो क्या ब्लैकिश पोर्शन जो है वो क्या है, कम है. देन उसके बाद क्या है, ग्रेव डिसीज में क्या होगा, यहाँ पर हमको ज़्यादा क्या है, यहाँ पर थायराइड एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हमको यहाँ पर दिख रहा है. देन उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका उसमें क्या है आपका टॉक्सिक्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है थायराइड हार्मोन हमको क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा. ओके, देन कम टू द मैनेजमेंट. What is the management for hyperthyroidism? The overall goal in the treatment of hyperthyroidism is to block the adverse effect of thyroid hormone and stop their over secretion. That means हमको क्या करना है, जो भी hyperthyroidism है उसमें क्या हो रहा है, excessive production हो रहा है, over secretion हो रहा है, तो हमको उसको क्या करना है, stop करना है, उसको हमको reduce करना है ताकि patient क्या हो, normal हो सके. Okay, then drug therapy, we are using various drugs to treat the hyperthyroidism. Then anti-thyroid drug we can use like we can use profithiouracil, then methamazole, inhibit the synthesis of thyroid hormone, then block the conversion of T4 to T3. मतलब इसमें क्या बोला है, ये जो आपका एंटी थायराइड हार्मोन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में हेल्प करता है एक्सेसिव प्रोडक्शन जो हो रहा है थायराइड ग्लैंड में, उसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए. ओके, दैट इज द ड्रग वी आर यूजिंग इन हाइपरथायराइडिज्म. Then beta adrenergic blocker, example propanol, inhibit the adrenergic effect. Okay, indication is promote control of symptoms. Then treatment of choice for thyroidosis. Then first line therapy before surgery, radioactive iodine and anti-thyroid drug. That is the indication for the beta adrenergic blocker for the hyperthyroidism. Then next slide is radioactive iodine therapy. Concentrate in the thyroid gland and destroy thyroid tissues. High cure rate with single dose treatment. Treatment of choice for grave disease, multinodular goiter, toxic nodular in patient older than 40 years. दैट मीन्स यहाँ क्या बोला है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी मेनली हम किस में करते हैं, जो भी ग्रेव डिसीज़ पेशेंट रहते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, मल्टी नोड्यूलर गॉइटर रहता है, टॉक्सिक नोड्यूलर रहता है पेशेंट में, और जिनका एज जो रहता है आपका जो रहता है 40 या उससे ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, थायराइड का ज़्यादा, थायराइड ग्लैंड से क्या हो रहा है, T4 T3 का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है. तो हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव थेरेपी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को कम करेंगे. ठीक है, जिससे क्या होगा, पेशेंट में क्या होगा, उसकी जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, धीरे धीरे सुधार होगा. देन कम टू द सर्जिकल थेरेपी. सर्जिकल ट्रीटमेंट इज मेनली, सर्जिकल ट्रीटमेंट में प्रेग्नेंट वुमेन हु कैन नॉट टॉलरेट अ ATD, ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग को जो वुमेन टॉलरेट नहीं कर सकते उनके लिए मेनली क्या किया जा सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है. ओके, देन सर्जिकल मैनेजमेंट इज थायरोइडेक्टोमी. थायरोइडेक्टोमी, एज वी कैन सी देयर आर 3 पिक्चर्स. फर्स्ट इज थायराइड लोबेक्टोमी. ओके, थायराइड लोबेक्टोमी में क्या कर रहे हैं हम लोग, वन पोर्शन को क्या कर रहे हैं, पूरा रिमूव कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन. ठीक है, देन सब टोटल थायरेक्टोमी में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है 3/4 पोर्शन को क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी रिमूव किया जा रहा है. ठीक है, टोटल थायरेक्टोमी में क्या हो रहा है, पूरा जो ऑल ओवर थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है, उसको क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं. ओके, दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ थायरेक्टोमी.
Then next is thyroid tonic, means management, nutritional management for the thyroid hyperthyroidism. That is, we are see in pictures carrot, cucumber, lemon and radish. These are the vegetables used in hyperthyroidism. Then food to avoid for thyroid patient. ठीक है, see there is a various types of list to avoid in thyroid patient. So what is cabbage, broccoli, cauliflower, mustard, radish, sweet potatoes, soya, peanuts, tofu, coffee, tea, chocolates, soft drink, caffeine, white sugar, ripe banana, dry food, honey, white bread, white rice, potatoes, white pasta, sweets. These are the foods to avoid for thyroid patients. Then nursing management. So first of all, first nursing management is fatigue related to hypermetabolic state with increased energy requirement. ओके, पेशेंट को क्या होगा, फटीक होगा. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हाइपर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है. तो पेशेंट क्या है, जल्दी टायर्ड हो जाएगा. ठीक है, उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, वेट लॉस होगा, तो पेशेंट को क्या होगा, फटीक होगा. तो उसके लिए हमको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या है, हमको रेस्ट प्रोवाइड करना है. ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, रेस्ट प्रोवाइड करना है, कूल एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, और उसको क्या है डाइवर्शनल थेरेपी यूज़ करना है, ताकि उसका क्या हो, माइंड रिलैक्स हो और वो क्या है, अच्छा फील करे. ठीक है, तो जो फटीक हो रहा है, जो भी उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है. ठीक है. देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट का इम्बैलेंस हो जा रहा है न्यूट्रिशन. क्यों? क्योंकि क्या है, उसका एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है. ठीक है, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है और लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है. तो उस कंडीशन में हमको क्या है, उसको वेल न्यूट्रिशन डाइट देना है. ठीक है, लो सोडियम रिच डाइट देंगे उसको. ठीक है, हाई कैलोरी डाइट देंगे पेशेंट को. देन उसका डाइटरी प्लान मैंने ऑलरेडी डील किया है. ओके. Then nursing management risk for impaired tissue integrity related to alternation of production mechanism of eye impaired closer to eyelid. That means क्या है, टिश्यू इंटेग्रिटी उसका क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा पेशेंट को. तो हमको क्या प्रोवाइड करना है, उसको हमको क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्ट करना है स्किन का जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको, कि क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या है, उसको केयर प्रोवाइड करना है. जैसे इसमें मेनली क्या हो रहा है, आई में क्या हो रहा है, उसका जो आई है वो क्या हो जा रहा है, आपका बल्जिंग आइज रहता है पेशेंट में. तो हमको क्या करना है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन करना है. ठीक है, उसको स्पेक्स पहनने के लिए एडवाइस करना है. अगर उसको कुछ विज़न का प्रॉब्लम है तो उसको हमको क्या है, फिजिशियन से क्या करवाना है, चेक करवाना है. देन उसको उसका मेडिसिन देना है. आई ड्रॉप इसमें प्रीफर कर सकते हैं. और वहाँ की जो स्किन है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी हम क्या करना है, उसको भी हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. दैट इज़ अ नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द हाइपरथायराइडिज्म. देन एंड थैंक यू.